Meenakshi. Okay, so let us continue our journey with JavaScript. तो अभी हमने प्रीवियस क्लास में ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स और यूटिलिटी क्या है और कैसे ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कुछ ये इम्प्लीमेंट किया था और साथ के साथ हमने अरेज के बारे में भी डिस्कस किया था, बट अरेज इतनी ही नहीं है, बहुत सारा अभी अरे से रिलेटेड देयर आर सेवरल मेथड्स, उसको हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे क्योंकि दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अरे रिलेटेड मेथड। बट अभी कैसे अरेज क्रिएट करते हैं दैट इज इनफ फॉर नाउ। ओके, सो ऑब्जेक्ट में हमने सारा CRUD ऑपरेशन देख लिया था। CRUD ऑपरेशन मीन्स कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करोगे, एंट्रीज को कैसे फेच करोगे, ठीक है। तो अभी हमने प्रॉपर्टी देखा था, बट अगेन इसके अंदर आप फंक्शंस भी रख सकते हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स कंटेन बोथ द प्रॉपर्टी एज वेल एज मेथड। मेथड मतलब फंक्शन की बात करेंगे तो दो टेक्निकल वर्ड है यहाँ पे, फंक्शन और मेथड, दोनों सेम है, ठीक है। जब फंक्शन को आप ऑब्जेक्ट के अंदर क्रिएट करते हो तो उसको हम मेथड बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट के बाहर जब क्रिएट करते हो तो उसको हम फंक्शन बोलते हैं, और कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, ठीक है। तो लेट अस ट्राई टू क्रिएट सम मेथड, कुछ मेथड भी रखने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ लाइक यूजर, और वेरिएबल का नेम मैंने नहीं दिया, तो लेट यूजर इक्वल्स एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट, इसमें यूजर का फर्स्ट नेम हो सकता है, तो फर्स्ट। Can you explain English further? हाँ, Sir, can you also explain English? okay, so user can contain first name, so let us provide the first name, for example this one, as well as user can also have like say, last name or middle name. So let us go with the last name first for now. Last name equals and user can also have like email. So email and user can also have like okay, these are the properties of this particular object. अभी मैंने इसमें property, I have just put properties in the particular object like user object, and I'm just going to log it over console. So let me open and just access the console, and let me clear and reload it. You can see कि I'm logging whole object here. Key value pairs are there. ठीक है, it is okay. ठीक है. If you need like email, you can do the user dot email. If you need first name, definitely you can use user dot first name too. Okay, and you can also use array like syntax for that too. For example, if you want to pass like user first name, definitely you can get first name without using the dot. Okay, so we, and you have to provide it in like a string. Okay, so whatever key you are providing, but you have to provide it like a string. And if I save, you can see you are accessing YAML. Okay, so you can also use array like structure to get access data from the object. Okay, totally possible, but key has to be in the form of a string, not exactly without a string kind of thing. Okay, so good. It is working. Now let us try to add some method. Method means some kind of behavior. Object contain two things, some properties as well as method. This is why we call it object. Object consists of properties as well as the behavior, the method. Okay, the function. Okay, so let us try to add some function in here. So I'm just going to put a comma here, and again I'm just going to like create a function what we call the full name. Full name. Perfect. And it is a simple function, so I'm just going to use create function and without name, because this key will
assigned as a name for that particular function. So these kind of functions are known as anonymous function when you don't provide any name after the keyword function. Okay, you don't need always to provide the function name, uh, because this key will assigned as a name of that particular function. Okay, let me just define the body, and I'm just going to give it a return, and return the full name. So I'm just going to kind of return manual full name, but again we will combine the first name plus not last name. We can concatenate the properties. Okay, so we have first name plus last name, and we can add them together. These are the strings, so if you plus them, you will get a concatenation. But I'm just going to initially I'm just going to supply the whole string by cell, but I will do some computation later. Let us see whether it is working or not first of all. Okay, so this is the full name, and exactly like properties, you can also access the method by using dot operator. So let us go and call this method. Okay, so this is the object, and definitely you have to put a dot here, and you can access like full name. Okay, this is the method, so you need to call it. Okay, because as you know, when we are, it's a function. Okay, function method both are same. So when we create a function inside an object, it is called method. Okay, so full name is method. Actually it is a function technically, but when it belongs to an object, we call it full a method, not the function. This just a technical differentiation, but again, if you want to say it function, totally fine, nothing wrong in that. Okay, but technically we refer these kind of functions as a method, and function outside of any object is considered as the simple function. Okay, so this full name method, so I want to call this full name method. Method means this is function, so I want to call it so that I can get this particular data in return. As you know, when you call a function, we will get returned data. Okay, so let us try to call it. To access anything from the object, you need to use dot operator. So user dot full name, and we need to call it because it is a function or method. So let us save it. Good. So we are getting the data, the return data we are accessing, but it's not a good thing. Why? Because I'm rewriting the same information here. These informations are available right there. We can add them. We can concatenate them to return the data. So this is how we work with the function. Functions usually use properties of that particular object to compute something, some result, whatever we want to implement. Okay, so a object can contain several properties, several methods to process that particular properties. Okay, but not particular, to implement some business logic by using the functions. Okay, for this case, I'm just using kind of full name kind of thing. Okay, so if I call this function, I will get a full name. Currently I hard coded it. This is not a good thing. I need to add these two things, Gyan plus Vishkarma, then I can get the same result. Okay, so let us try to do that. Okay, let us try to do that. This is very important. Okay, so always remember, whenever you want to access properties or method of object, you need to get object first, then you have to do dot, and then after you can call any properties or method. Okay, so you need first name, you have to put first name. You need email, you have to put email. If you want to call a method, definitely you have to put method name with parenthesis if it is a method. Okay, so this is the whole circle of working with object, but again objects are other things too. So let us uh, move forward and try to implement that thing, and I'm just going to explain the very important concept, the this. Okay, so let us try to do it. I'm just trying to add these two things together to create a full name. That makes sense. I don't want to hard code it here. Okay, मुझे hard code नहीं करना है. I just want to add those two things here. So first name, and I'm just going to remove this for now because I will explain it. So first name, and I'm just going to add one space in here. So
not the curly bracket, quotation with space and one more plus here, the last name. And I'm just again going to remove this from here. Okay, so that was code hinting, that's why they are getting it. Okay, so you can see this is a user object. There is first property, there is second property, there is third property, and this is the one method. So now our object has three property and one method, totally fine. When you call this method, I'm going to get a full name. And how does the full name getting constructed? Based on these properties. Okay, so first name plus last name, it makes sense to me. Okay, I'm not hard coding it. Now this function is much more flexible. For any object, if we provide kind of some other first name and some other last name, I can still use this particular function to compute the full name. That is very good. Okay, so let's try to run it and see whether it is working or not. This is very, very important. Okay, what do you think? Is it going to work or not? Will it work? Yes, sir. Okay, so you are suggesting if Gyan plus space plus Vishwakarma is going to be in the console, right? You are suggesting that. So let us find it out. Save karte hain, and no, it is not working. Why? The major thing Argument में is पास करना पड़ेगा. क्या पास करना होगा? Name, last name. So first name, last name is already there, no? We are not getting access to that. That is why it is saying ki first name is not defined. So we are trying to access a variable kind of thing from a function, ठीक है, और मेथड. ठीक है, फंक्शन और मेथड के अंदर से हम लोग ये प्रॉपर्टी को एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हैं, एंड वी आर फेलिंग इट, क्योंकि उसको रेफरेंस ही नहीं मिल रहा है. तो मैंने बोला ना कि जब भी आपको ऑब्जेक्ट के अंदर से कोई भी प्रॉपर्टी और मेथड यूज करना हो तो आपको क्या करना होगा? पहले ऑब्जेक्ट यूज करना होगा, एग्रीड, और उसके आगे डॉट लगा के प्रॉपर्टी का नेम यूज करना होगा, राइट? Yes, sir. सो यहाँ पे आई एम नॉट फॉलोइंग दैट रूल. आप क्या कर सकते हो? यूजर डॉट फर्स्ट नेम करोगे तब इट मेक सेंस ना, यूजर डॉट फर्स्ट नेम, एग्रीड, बिकॉज आई नीड user Yes, sir. object and User then and also this. and by the same logic we can go like User that. dot User dot option. Now it makes sense. Okay, let us save it and hope for the best. Yes, now it is working. Okay, so this is what we call whenever you need to access property of a particular object, you must use object first, then dot, and especially inside the method. Okay, especially inside the method, you don't need to use user dot something right here. Okay, you never need to. आपको कभी ऐसा केस ही नहीं पड़ेगा कि आपको बाहर कभी एक्सेस करने की जरूरत पड़े. But pay attention always whenever you are trying to access a property of that particular object inside a method, then you need to refer that object first. ठीक है, तो इसी को और ज्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए we invented this keyword. Okay, so this is not, this is what, this is the current object. If I want to replace this user with this keyword, it is going to still work. So it makes sense. What is this? This is the user object, correct? So so this is the core of this, how this work in a programming. Okay, so again, this is the exactly user. So I'm just using the user dot first name, I'm getting access to the user. If I switch this user with this, they invented this keyword for that. Okay, so this is the reference to the current object. It is going to work. Still it is going to work. If I save, you can see one property we are accessing with the this dot first name, and one property we are accessing with the user dot last name. Both are working because this pointing to user object only. So this is always a reference to the current object. Very important. This is always a reference to the current object. अब बार बार आपको इधर user object नहीं use करना, user dot this, no, just use this against
ठीक है, and will refer to the current object, मतलब इसी यूजर ऑब्जेक्ट ही है ये, करेक्ट ना? दिस क्या है? दिस इज द यूजर ऑब्जेक्ट, सिंपल, ठीक है. इफ आई से code is still compiling and no errors, everyone is happy. Okay, so always keep in mind ki this is a reference to the current object. Good. So good. So if I return only this, what you will get? And if I'm calling this method, okay, what do you think what you will get? अभी दिस किसको पॉइंट कर रहा है? हाँ, very good. Who is this? Okay, so it will print the whole object because it is the same object, na? This points to the current object, and I'm calling the function, and you will get whole object again. You can see the magic of this, right? Yes, sir. Okay, so if I just remove that, you will get the same result. And if I call that method full name, you will get this whole method again. Okay, so same. So this is very, very magical. Okay, this is how this works. Clear enough? This key working. This is a Yes. reference Yes, to sir. the current Yes, sir. object. Very simple. And this is the simplest explanation I have. Okay, otherwise this is very tricky to understand. Okay, so good. Let us try it with other object. So let us create a product. I think I removed. So I'm just going to make it object. This one I'm just going to convert it in an object. So I don't need this var. I can use multi-line editor, but I'm just ignoring for now. Okay, and I just need to replace this equal with colons. And just going to wrap it in a curly braces. And just going to create a variable, for example, var product equals. Now everyone is happy, and I need to replace semicolon with commas. Sir, can we write a object inside any object? Oh yes, you can write. You can also create object like if you want to create a product name or like product availability based on some condition. You can also, for example, if you want to price with some other object like structure, definitely you can put object here, right? Okay, so it is totally fine. And this is a very good use cases. You will see several time object inside the object. Okay, this is totally fine. Okay, so I'm just going to create one more method here. For example, I'm just going to create a property like discount, and the discounted rupees, I'm just going to put it like 5,000. Okay, and I need a final price. Okay, so final price, and it is going to be a method. So let us create a function and curly braces and define it. I'm just going to return directly like price minus discount. That will give you the actual price name. So how do I refer it? Sir, this dot price minus this dot discount. This dot price minus this dot discount. Good. Perfect. So it when we call it, it will give the like final price or whatever. Okay, so let us just
पे अटेंशन, ऑलवेज फ्रॉम द मेथड यू नीड टू यूज दिस, इधर नहीं यूज करना है कि दिस डॉट इन स्टॉक, नो, ओनली इनसाइड द मेथड, क्योंकि थोड़ा सा स्कोपिंग है कैसे वी विल सी, ठीक है, अभी उसको और डिटेल में देखेंगे दिस को, और अभी उसका ऑपरेशन बाकी है, बट दिस के साथ वर्क करने के लिए दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है, जितना आपको भी बताया दैट इज इनफ, क्योंकि इससे ज्यादा दिस का आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो अभी इस केस में क्या कर रहा है, इस केस में दिस यूजर ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा है, राइट, वही है ना, और यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, दिस इस केस में किसको रिफर कर रहा है, प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट को, ओके। सो दिस इज मैजिकल, अब आपको इधर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट नहीं करना है और इधर यूजर डॉट यूजर नहीं करना है, कुछ नहीं, you just need to use this once you created the object. Okay, good. So this is how this works. Okay, there is little more detailed explanation is still pending, but I think for now this is more than enough. अभी के लिए this के साथ working आप कर लो, that is okay. So let us call that. तो अभी मेरे पास I'm just going to log the final price. So product dot final price, and it is a method, so I'm just going to call it. If I save it, you can see I'm getting 7,000, my final price. Again, you can store it in a variable and you can use it for further processing, totally fine, not a big deal. Okay, good. And if you exactly like that, if you return only this, then definitely you will get the whole product object, because this is the reference to the current object. Good. So this is how this work. Now let us talk about so again object contain properties as well as method to deal with it. So depending on the need, we can put several properties and several methods, and we are the owner. So depending on the requirement, we will create objects. So we translate requirement into code, because customer comes up with the requirement कि वो आएगा कहेगा कि मुझे ये ऐसा कुछ चाहिए सर्विस या ऐसा फीचर चाहिए in my application. So you will read the requirement, and based on those requirement you will try to create some object, and then you will utilize that object to solve the problems. Okay, this makes our life much more easier when we follow the object oriented pattern. सर Yes, अगर हम डिस्काउंट के उसमें 5,000 के बदले 15% लिखेंगे और फिर दिस इसमें माइनस करेंगे, जैसे प्लस कर देंगे हम, डिस्काउंट में माइनस कर देंगे प्राइस, दिस प्राइस माइनस बाय फिर दिस डिस्काउंट, तो परसेंटेज में माइनस हो जाएगा। नहीं, परसेंटेज आपको कैलकुलेट करके फाइनल वैल्यू रखना पड़ेगा ना, परसेंट कंप्यूट करने का जो फार्मूला है वो आपको इधर अप्लाई करना पड़ेगा। ओके सर, ठीक है, वो क्या परसेंटेज होता है? सिंबल, परसेंट कंप्यूट करने का फार्मूला टोटल बाय व्हाट अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 100 ना। ओके सर, तो अच्छा वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो हाँ, डिस्काउंट नहीं इज वो इक्वल आपको टू। आपको फार्मूला क्रिएट करना पड़ेगा। मान लो यहाँ पे डिस्काउंट प्रॉपर्टी आपको बनाना पड़ेगा ना, यस सर, कि हाँ डिस्काउंट मतलब फंक्शन क्रिएट करना होगा। ठीक है, यू विल क्रिएट लाइक डिस्काउंट या कैलकुलेट डिस्काउंट समथिंग लाइक दैट। ठीक है, कैलकुलेट डिस्काउंट, और इसका मेथड क्रिएट करना होगा। तो मेथड क्रिएट करना होगा लाइक फंक्शन, एंड डेफिनेटली यहाँ पे कॉमा मिसिंग है, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू पुट इट लाइक, तो रिटर्न करोगे आप वही जो भी आपको डिस्काउंट देना है। सो रिटर्न एंड व्हाट एवर डिस्काउंट आपको चाहिए। ठीक है, तो इस फंक्शन को कॉल करोगे, आपके पास वो वैल्यू आ जाएगा। तो आप बाहर कहीं भी इधर भी कंप्यूट कर सकते हो फाइनल, राइट। आपको इधर मैंने तो इधर प्रॉपर्टी की तरह रख दिया, बट यू डोंट नीड। अब इसको कॉल करोगे तो आपको रिटर्न में क्या मिलेगा, डिस्काउंट। और उसके बाद आप इसको कॉल करोगे तो डेफिनेटली आप इसमें पास करोगे फिर, राइट, डिस्काउंटेड वैल्यू। अच्छा, आर्गुमेंट मैंने पास करना नहीं बताया, तो चलो इधर से रिटर्न करते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूट होके, और हमारे पास सपोज डिस्काउंट कितने का आ रहा है, 3,000 रुपीज का डिस्काउंट आ रहा है। आप इधर परसेंटेज का फार्मूला लगा देना अगर परसेंटेज में आपको डिस्काउंट चाहिए तो। ठीक है, आप इसको कॉल करोगे, परसेंटेज सप्लाई करोगे, उसके बेसिस पे परसेंटेज कंप्यूट हो जाएगा, ओके सिंपल। सर, ठीक है, तो आप इस फंक्शन को जब कॉल करोगे तो डेफिनेटली आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट डॉट डिस्काउंट, प्रोडक्ट डॉट डिस्काउंट, नॉट डिस्काउंट, कैलकुलेट डिस्काउंट।
कैलकुलेट डिस्काउंट, और अगेन आप अगर और कंट्रोल देना चाहते हो कितने परसेंट का डिस्काउंट देना है, तो इधर आप 20% 30% पास करो, उसके बेसिस पे कंप्यूट करके फाइनल रिजल्ट ले लो, ठीक है। तो इधर हमें डिस्काउंटेड प्राइस मिल जाएगा, इक्वल टू लगा के आप स्टोर कर सकते हो, लाइक वॉर डिस्काउंट इक्वल्स टू दैट, एंड डेफिनेटली आपको इधर डिस्काउंट मिलेगा। अब आप फाइनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, तो इधर डिस्काउंट आपको फिक्स रखने की जरूरत नहीं है, ओनली प्रॉपर्टी, वहाँ पे कंप्यूटेशन अलाउड नहीं है, राइट। ओनली मेथड के अंदर कंप्यूटेशन कर सकते हो आप। तो अब हमारे पास डिस्काउंट इधर है, तो अब हमें क्या करना है, आर्गुमेंट वाला बनाना पड़ेगा फंक्शन, कि चलो मैं अभी डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ। तो अभी जो हमारे पास प्राइस है, तो उसको रेफर करने के लिए दिस डॉट प्राइस करेंगे, राइट। यस और सर। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे डिस्काउंटेड, ठीक है। तो बी मैं यहाँ पे रख रहा हूँ एज ए आर्गुमेंट, और इधर हम लोग डी लगा देते हैं, करेक्ट। यस और इधर से अब क्या पास करोगे कैलकुलेट करने के टाइम पे, डिस्काउंट, राइट। तो लेट अस डू कॉल दैट प्रोडक्ट डॉट फाइनल प्राइस, और इसमें हम लोगों को क्या चाहिए पास करने का, डिस्काउंट। तो वी कैन गो लाइक डिस्काउंट, परफेक्ट। और यस अगेन इसको आप लॉक कर सकते हो सीधे, या फिर कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगेन जस्ट इमेजिनेशन, you can do whatever you want with the object orientation. So for example var final price, डेफिनेटली इसको लॉक कर सकते हो आप, या फिर फर्दर आपको फॉर एनी रीजन इफ यू वांट टू यूज इट, डेफिनेटली यू कैन use it. If you save, definitely you can see you are getting 9,000, correct? यस सर। Okay, so good. Direct computation is not allowed here, right? हेलो सर। Yes. सर जो अंदर हम लोग दो मेथड बनाए हैं, तो कैलकुलेटेड आई डिस्काउंट जो है उसको हम अंदर ही यूज कर सकते हैं कॉल करके, जैसे फाइनल प्राइस में दिस डॉट प्राइस है, और यहाँ पे ही हम इसको माइनस करके कॉल कर लें कैलकुलेटेड डिस्काउंट। ऑब्जेक्ट के अंदर ही। यस सर, ऑब्जेक्ट के अंदर ही, अंदर भी कर सकते हैं। हाँ, उसका बेनिफिट नहीं है कोई ना, आप कॉल तो कर नहीं सकते यहाँ पे, ठीक है। चलो लेट अस ट्राई, ठीक है। आप जो कहते हो उसको कर लिया करो इधर ही सीधे, ये करने का मतलब है ना, क्योंकि यस सर, इसमें आप फाइनल प्राइस के अंदर जो ये मेथड है, इसके अंदर जब हाँ, हम रिटर्न करा रहे हैं तो दिस अच्छा डॉट हाँ ठीक प्राइस है, आप करके, ये कह और रहे हो कि हाँ हाँ ये वाला, ठीक है। आप यस जैसे सर, ये कह रहे हो कि यहाँ पे हम इस मेथड को भी तो रेफर कर सकते हैं ना। यस सर, यस तो सर। हाँ, तो चलो ट्राई करते हैं, ठीक है। तो आप कर सकते हो, मैं बोलता हूँ इसको दिस डॉट, तो आप देखो कैलकुलेट डिस्काउंट का एक्सेस है ना, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, ठीक है, ये वाला ना। यस सर, यस। हाँ, तो यू कैन डू दैट, इट विल वर्क, ठीक है। हाँ, वो दिस करोगे तो सेम ऑब्जेक्ट है ना, तो इट इज गोइंग टू वर्क डेफिनेटली, ओके। सो इट विल वर्क, इवन इट इज वर्किंग, ठीक है। डिस्काउंटेड किया, वो रिटर्न में आ रहा है, तो सब्ट्रैक्ट होके तभी 9,000 आ रहा है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये वाला तो चल ही नहीं रहा है ना, ठीक है। यस सर। हम्म, तो टोटली फाइन, ओके। सो यू कैन डू दैट, इट इज पॉसिबल, ठीक है। हाँ, बट इधर आप कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर आपको ऑलवेज की वैल्यू के फॉर्म में देना होता है, करेक्ट। तो ऐसे इधर साइड में कॉल, हाँ, मेथड के इनसाइड कॉल करना है तो कर सकते हो आप, टोटली फाइन। यस सर, मेथड के ही अंदर, क्योंकि कभी हम लोग को कुछ करना पड़े या वो अंदर ही हाँ हाँ, फंक्शन को यू कॉल कैन डू, करना पड़े, सो ठीक है। इट इसलिए। इज रेफरेंस, दिस इज रेफरेंस टू द करंट ऑब्जेक्ट। जब भी मेथड के अंदर से आप यू वांट टू यूज एनी प्रॉपर्टी और मेथड, डेफिनेटली यू कैन रिफर इट विद दिस, ओके। सो गुड, we are now working with the objects, good. Okay, so now it's time to
अभी एरो फंक्शन हम नहीं जानते, बट एरो फंक्शंस के अंदर दिस वर्क नहीं करता क्योंकि बाइंडिंग नहीं होती है ना उसकी। सो विल टॉक, जब एरो फंक्शन हम डिस्कस करेंगे तो इधर आप एरो फंक्शन यूज करोगे ना तो दिस के साथ प्रॉब्लम होगा। सो केयरफुल विद दैट, बट अभी एरो फंक्शन वी डोंट नो, तो अभी उसको स्किप कर रहे हैं फॉर नाउ, बट वी विल डिस्कस जब एरो फंक्शन हम डिस्कस करेंगे एट दैट टाइम। ओके, सो आई थिंक इनफ, ठीक है। अभी ऑब्जेक्ट के साथ वर्क करने के लिए दीज इंफॉर्मेशंस आर इनफ। और अगेन इंटरव्यू में भी यू कैन स्पीक अप समथिंग अबाउट ऑब्जेक्ट, तो हो जाएगा, इट्स टोटली फाइन। दिस बस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, उसको आप लोग ध्यान देंगे। ओके, सो कंस्ट्रक्टर्स फंक्शंस, ओके, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का ये वे है, इट इज ओके। ओके चलो ठीक है, डॉम मैनिपुलेशन देखते हैं, उसके बाद हम लोग कंस्ट्रक्टर्स पे चलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा अप्लाई भी करते हैं, अभी तक काफी हमने कवर कर लिया। या फिर चलो पहले हम लोग लेट वॉर कॉन्स, चलो ठीक है, उसको ये 6 के फीचर्स को अलग से कवर करेंगे। अभी चलो थोड़ा अप्लाई करने की तरफ चलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा एप्लीकेशन पार्ट भी देखते हैं कि कैसे आप कर सकते हो। तो वी नो द फंडामेंटल, हमें पता है वेरिएबल्स, व्हाट आर वेरिएबल्स, we can create variables, we can create arrays, we can create like objects, okay, so we can do several things. Now it's time to apply the existing skill, जितना भी हमें अभी पता है basic things, to work, ठीक है। थोड़ा सा वर्क करने के लिए हमें उसको अप्लाई करना है, ठीक है। बस इतना अप्लाई करते हैं, अभी इवेंट हमें नहीं पता है तो, बट वी विल डू, यही प्रोसेस होने वाला है। तो हम लोग डॉम मैनिपुलेशन देखते हैं, ठीक है। इतने से डॉम मैनिपुलेशन आपको इजीली अंडरस्टैंड कर लोगे, देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी इशू कि डॉम कैसे वर्क करता है। बट अभी एडवांस जावास्क्रिप्ट का पार्ट इज डेफिनेटली रिमेनिंग, इसमें आइटरेबल्स अभी है हमारे पास, वी हैव कंस्ट्रक्टर फंक्शन, प्रोटोटाइपिकल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो सारा अगर मैं एक साथ कवर करूंगा तो थोड़ा सा इट में वो लाइक बोरिंग काइंड ऑफ थिंग। तो चलो थोड़ा सा अप्लाइड पार्ट भी हम लोग इधर कवर कर लेते हैं, कि कैसे आप डॉम मैनिपुलेट करते हो। डॉम मैनिपुलेशन क्या होता है, लेट अस टॉक ऑन दैट, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट के अप्लाइड एस्पेक्ट पे जा रहे हैं, देन वी विल डेफिनेटली स्विच बैक टू द कोर जावा अगेन, जावास्क्रिप्ट, ओके। So we'll switch back, वहाँ पे we'll talk about the constructor function, we'll talk about the ES6 features, we talk about the asynchronous programming. Lots of information are still pending for JavaScript, but now let us switch to the mode to the application part. इतना हमें पता है कि now we can create something useful out of the whatever we know, okay. So I'm just keeping this particular object here for now. Just let me keep the product object here, और अभी के लिए let us remove this methods from here. I don't need that for now, but again if you need, definitely we will. Okay, so the console.log तो समझ में आ गया होगा ना, what is console? Yes, ठीक, sir. Yes. इसके आगे डॉट है, right? तो it is the object and this is the method inside the console object, right? और उसके अंदर आप मेथड कॉल कर रहे हैं, जैसे अब अपना मेथड आज हमने कॉल किया था, ये वाला फुल नेम वाला, ठीक है। तो दिस इज एग्जैक्टली लाइक दिस ना, अगर इसको मैं बाहर ले आऊं तो आपको ये console.log से मैच करा सकते हैं, इसको एग्जैक्ट कॉपी की तरह लग रहा है ना, user.fullname और console.log बोथ सीम्स सिमिलर पैटर्न। तो अभी यूजर ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया, बट कंसोल हमने नहीं क्रिएट किया, इट क्रिएटेड ऑटोमेटिकली बाय द ब्राउजर, okay. So good, and we are calling the log method again. Log method we also not created, again created by the JavaScript itself, and we are just calling it, that's it. Or इस case में we have created everything from scratch, okay. So we can do, okay. So let us switch to the applied part. अब DOM manipulation पे चलते हैं, या फिर DOM manipulation अभी नहीं करते हैं। Let us try to create a template out of this object. Template means कि इधर हमें template इंजेक्ट करना होता है, ठीक है। ये HTML है, HTML template आप इधर अगर आओ एलिमेंट पे, let us open the element, तो बॉडी के अंदर you can create kind of HTML और put some HTML और उधर इधर वो रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है।
तो अभी टर्म मैनिपुलेशन देखते हैं, बट उससे पहले आई वांट टू क्रिएट समथिंग लाइक, ये स्ट्रिंग है, ठीक है, दिस इज स्ट्रिंग डेटा। आप स्ट्रिंग को यूज करके डेफिनेटली ऐसा कुछ कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक और स्ट्रिंग को क्रिएट करने का एक और आप लोगों को वे बताता हूँ, दैट इज व्हाट वी कॉल द स्ट्रिंग लिटरल, ठीक है। अभी हमारे पास स्ट्रिंग क्रिएट करने का डबल कोटेशन वे है, सिंगल कोटेशन वे है, और दो these two ways we know, ठीक है। इवन स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर भी होता है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं, बट वी डोंट नो अबाउट कंस्ट्रक्टर yet, तो जस्ट होल्ड ऑन दैट। So I'm just going to create like a string or like name, and you can see I can use single quotation, it will work without any issue, and I can also use double quotation or like email equals I can use double quotation and it is still working without any issue. But we also have one more way, और उसमें थोड़ा सा और flexibility हमारे पास है, that's what we call the template literals. ओके, सो टेम्पलेट लिटरल इसको भी क्रिएट कर सकते हो, बट उसमें आपके पास थोड़ा सा पावर एडिशनल है। फॉर एग्जांपल चलो ट्राई करते हैं टेम्पलेट लिटरल कैसे क्रिएट करते हैं, बट अभी के लिए चलो मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेरिएबल और है, ठीक है, एज। एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं, एज इक्वल्स लाइक 30। गुड, अब मुझे कुछ ऐसा क्रिएट करना है कि हाय ज्ञान योर एज इज 30 ईयर्स, मुझे ऐसा कुछ स्ट्रिंग क्रिएट करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी मान लो मुझे एज डेटा चाहिए, साथ के साथ नेम चाहिए, ठीक है। तो फाइनल स्ट्रिंग कैसे क्रिएट करोगे, कॉन्कैटिनेट करके ना, डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन यूज करोगे, हाय और ज्ञान चाहिए तो आप ऐड करोगे किसको, नेम वेरिएबल, करेक्ट, राइट ना, प्लस हाय नेम योर एज इज काइंड ऑफ, और फिर से आप प्लस यूज करते हो, राइट, एज, मेक सेंस, यस सर। ये तो है ना फाइनल। सो लेट अस store it in a variable like final name equals and what, and now you can log it, ये कंसोल पे आप चेक करोगे तो आपको एक बेटर final name, and if I save it, let us come to the console and you can see कि हाय ज्ञान, और देखो उधर स्पेस मैंने नहीं डाला, that's why I am not getting one more space. You can add smartly one space either, या फिर you can also add double quotation space, both will work. Okay, so you can see hi Gyan, your age is 30, totally fine. So you can see based on some variables you can also create kind of string structure, but this is a little bit challenging. You can do totally fine, and to solve this problem we invented one more way, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं template literals. Okay, so now let us talk, let us create the same thing in the template literal way and in much more easier way. Okay, so let us like create a variable final2 equals, now I'm going to create template literal and it has some additional powers, ठीक है। स्ट्रिंग के अंदर आप वेरिएबल डायरेक्ट रख सकते हो, आपको प्लस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो टू क्रिएट टेम्पलेट लिटरल आप बैकटिक साइन यूज करते हो, बैकटिक एस्केप की के जस्ट नीचे वाला की है, ठीक है। आई एम जस्ट गोइंग टू प्रेस इट, एस्केप कीबोर्ड में एस्केप जो टॉप कॉर्नर पे होता है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर, ESC की, उसके जस्ट नीचे एक की है, दैट इज व्हाट वी कॉल टेम्पलेट, सॉरी बैकटिक, ठीक है। ये वाला ये सिंगल कोट की तरह रखता है बट इट इज नॉट अ सिंगल कोट, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल बैकटिक साइन, एंड बाय यूजिंग बैकटिक साइन वी कैन क्रिएट टेम्पलेट लिटरल। स्ट्रिंग को क्रिएट करने का एक बेटर वे आई एम सजेस्टिंग है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मैं कोटेशन नहीं यूज कर रहा हूँ, सिंगल कोटेशन डबल कोटेशन आई एम नॉट यूजिंग, आई एम यूजिंग बैकटिक, और दिस इज व्हाट वी कॉल टेम्पलेट लिटरल्स, ठीक है। So I'm just going to write the same thing, hi, अब मुझे नेम का डेटा चाहिए इधर, ठीक है। तो आई एम नॉट गोइंग टू यूज प्लस साइन हियर, ठीक है। दिस इज द अगेन, तो फिर तो वही हो गया ना, आप यू शुड गो लाइक कॉन्कैटिनेशन वे,
बट यहाँ पे अब मुझे जावास्क्रिप्ट मोड चाहिए. नाउ वी आर इन द स्ट्रिंग मोड. तो इन द टेम्पलेट लिटरल यू हैव पावर टू स्विच टू द जावास्क्रिप्ट मोड. ठीक है, स्मॉलर पीस ऑफ आपको जावास्क्रिप्ट राइट करना है तो डेफिनेटली यू कैन स्विच टू द जावास्क्रिप्ट मोड. अभी इधर जावास्क्रिप्ट मोड मेरे को इनेबल करना है तो आई विल गो $, curly bracket. That's it. ठीक है, now you enabled the JavaScript mode. It is not possible in double quotation and single quotation. You cannot use that syntax in double quotation or single quotation. You must use a template literal, the backtick sign to get that power. So now it is JavaScript mode. We can write any valid JavaScript here. I need that variable, so I'm just going to put a name here. Okay, name, and your by uppercase, age is same thing, and again I need JavaScript mode because I need a variable inside this particular string, some value from the variable. Okay, so if you put like age, it is not going to work. Okay, so it is going to be printed only age, not the 30. So let us save and try to log the final 2 here, just below the final name. Save, and you can see you are getting age, not the 30. Okay, so again you need to switch to the JavaScript mode and then interpolate it. This is what we call interpolation. Okay, so we can easily interpolate a variable here. So again $, always $, curly bracket. That's it. JavaScript mode on. Now you can write age variable here. So it makes sense to me, and this is much more easier. You will write the string, or whenever you needed JavaScript mode, you can use $curly bracket and you can write some valid JavaScript in it. Now it will work. You will get the same result from both. You can see, hi Gyan, your age is 30. Hi Gyan, your age is 30. So this is much more simpler way, right? You don't need to like do the double quotation, then plus, then variable name, then plus, then again double quotation, open, close, plus, then something like that. Okay, and this is very easy way. So we will follow this pattern depending on the need. So this is also a one way of creating the string, in which we have like interpolation capability with the help of backtick sign. Okay, so 3 ways: single quotation, double quotation, and backtick. With backtick, you can use interpolation. Simple. Good. So okay, now I want to create something string based on this particular object. Okay, so let us try to do that. Simplest, and based on that object I need to create some string, because the HTML is just simply string, nothing more than that. Okay, so let us try to create like var. I'm just going to make it HTML variable name. Whatever you name it, it is totally fine, but I'm just going to use template literal for here, for now here, and good. So based on that object, I need to create a template. Whatever data in that particular object, just to give me a HTML based on that template. So this is where we will decide the product name, what tag we will use for the product name, what tag we will use for the price, what tag we will use for the product ID, and what tag we will use for the is in stock. Okay, so now we can write whole HTML in this particular backtick symbol. Okay, so let me just bring it down so that we can write lots of HTML here. Again simple string. Okay, so product name, I want it in a like H2. So I'm just going to create H2 here. Pay attention, and just going to close it because it's to closing tag, so it must close. And I need the product name here. Pay attention, I need product name here. So what will I do to enable JavaScript mode in the template literal? Yes, sir. So I will do go like dollar curly braces, correct? And how to access this property from this object? Product name. Product name. Perfect. So we are constructing a HTML, right? Okay, and this is H2. Now price, again let us make it in H3 for example.
h3, and you can also specify classes here to provide some styling. Okay, you can also do that. h3, I'm just going to follow /h3, and again to enable JavaScript mode I'm going to use again the power h3, and again product dot price. Okay, so we don't have product description. So again, if it is there, then definitely we will use like, let us put a product description like lots of paragraphs. So the lots of text. So we can use paragraph tag for that. So description. So this is the best iPhone ever. You can add like camera property, all the things. Okay, so totally fine. Okay, so I'm just going to keep that simple thing as a product description. So again, I just going to use paragraph tag to put the product description here. The $, curly braces, and again same process, product dot product description. Good. And I need like a price, that is enough. Is in stock, definitely we can put that too. Product ID, if you want, definitely we can put it too. So for is in stock, let us put it in H1, the big one. Yes, it is available in the stock. I don't like the designing things this way, but H1 again $ curly bracket, and this will do, you will do in daily, on daily basis in the organization. आपको ऐसे ही कुछ code write करना होता है, like product is in stock. Okay, you can provide some other text here too. The product name is always going to be Apple iPhone. So product name colon price colon details colon and ability, whatever. You can also name other things. Okay, good. So we have created a simple template here. You can log it in the console too. So let us log and check the work कर रहा है कि नहीं कर रहा. Console.log HTML. Very good. So if I save it, yes, you can see we have created a good amount of HTML here. H2 with product name Apple iPhone, and you can see there is no, we are converting an object into a string, or more precisely in a template, okay, based on that object. Good. So great. So we are creating that. Now it's time to inject. We are console.logging it. It's a good way. Now it's time to inject it right here, because browser will understand these things, right? It will place like product in S2 format, price in S3 format, and details in the paragraph format, and availability in like H1 format, right? And if you want to provide some CSS, you can also add some classes, or better, you can wrap it in a div if you like. It's totally fine. Okay, this is the way. Div, and you can close whole div right here. Don't worry, you don't need to do these things. That's why React and all the tools are invented. But for now, just we are following the vanilla JavaScript way, and you must know these things too. Okay, so we have created kind of this whole HTML, and it is working. We are getting information from the object, totally fine. Now it's time to put this information over there. Okay, and so, trust me, it's not that easy.
Okay, it's easy, but you must understand the process, how you can achieve that thing. Okay, so we have created, and again, this is the process. What you will do, you will connect to some API, and you will get object from that API exactly in that format, and you need to convert that object in the template, and you need to inject that object in the DOM tree or here. Okay, so how to put information here? So now let us switch back to the HTML concept again. So this is thing we will do. Okay, अभी इसको हम लोग थोड़ी देर में इसको use करेंगे. We will inject it in here, and it will look good. Okay, even you can provide like a product image. We have like this image, car image. So if you want to like provide product image, definitely you can do. So image column, and you need to provide path for that image. So what is the path? This is only the product name because it is in the same directory. So one.jpg will work, right? Right now. Yes, sir. So one.jpg will work. So you can interpolate image here, like just after the product name, let us put image, then price and details. So you need to use just image tag here, img, and let us close it and use the src equals, and again you need to put something in double quotation, and this is going to be dynamic one. So $sign curly brackets, made sense? And what is it is going to be? Product dot image. Perfect. So we have created a whole template here. If I save it, definitely you will see there is one.jpg, everything is ready, but we are putting it in the console. Not good. uh, Again, you want to control the width and height, definitely you can provide like width equal double quotation, like I'm just going to go with 300 for now. Okay, so good. Everything is ready. Now it's time to inject it in here. But let us switch back to the HTML again. Now, forget JavaScript for a moment. So when you create a page, HTML, static, simple HTML page, forget about JavaScript for now. So what is the process? Pay attention, because usually अभी हम लोगों को ना इतना आइडिया नहीं है कि कैसे सारा का सारा. अभी हम लोगों को पता है कि बस हम HTML राइट करते हैं और इधर वो रिफ्लेक्ट होता है. दैट्स इट, इतना ही हमें पता है. we write some HTML and it get placed over the page. बट कैसे होता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इतना इजी नहीं है. ब्राउजर को काफी मेहनत करनी पड़ती है टू डू दैट रेंडरिंग और पेंटिंग. सो अभी सपोज इधर एक और पैराग्राफ भी रख लेते हैं फॉर नाउ. जस्ट सम डमी डेटा, सेव इट, एंड यस वी हैव समथिंग हियर. सो व्हाट हैपेंस कि जब भी आप इसको ब्राउजर को index.html इधर प्रोवाइड कर सकते हो. ये /index.html है, यू कैन सी स्टिल द सेम रिजल्ट. सो व्हेन यू प्रोवाइड अ HTML पेज टू द ब्राउजर, ओके, तो ये डायरेक्ट HTML को इधर नहीं प्लेस करता है. ठीक है, इट डोंट प्लेस डायरेक्ट द HTML फाइल. ये क्या करता है कि इसके बीच में देयर इज वन मोर स्टेप, एंड वी मस्ट नो दैट स्टेज की व्हाट इज दैट स्टेज. दिस इज व्हाट वी कॉल द parsing. Okay, so when you provide HTML page to the browser, it breaks it. ठीक है, ब्राउजर इसको क्या करता है, ब्रेक करता है बेस्ड ऑन द टैग. दैट्स व्हाई हम लोग फोकस करते हैं कि बेटर स्ट्रक्चर्ड पेज होना चाहिए, सारे टैग प्रॉपरली यूज होने चाहिए. अदरवाइज ब्राउजर को बड़ी प्रॉब्लम होती है उसको पार्स करने में. पार्स करना मतलब इट विल ब्रेक दैट पेज, और इसके बेसिस पे वो क्या करता है कि एक डॉम ट्री क्रिएट करता है, जिसको हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल भी बोलते हैं. वो एक डॉम ट्री, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ट्री क्रिएट करता है. ठीक है, यूजुअली इसको डॉम बोलते हैं, DOM. ठीक है, तो अभी तक हमें नहीं पता है कैसे होता है, बट आपने देखा है उसको. ठीक है, डोंट यू नो वो है क्या. सो व्हेन यू प्रोवाइड HTML टू द ब्राउजर, इट ब्रेक्स इट, मींस इसको पार्स करना बोलते हैं टेक्निकली. दिस प्रोसेस इज नोन एज पार्सिंग. सो इट पार्स दिस होल कोड and converts a DOM tree. इधर अभी नहीं प्लेस करेगा. ठीक है, नो डायरेक्ट HTML नेवर. अभी
HTML रिसीव करेगा, उसको पार्स करेगा, पार्स करके डॉमेट्री क्रिएट करता है, और वो ये वाला से ऐसा कुछ क्रिएट करेगा, एलिमेंट वाला टैब वाला ऐसा। यू कैन सी, इसको आप स्पीच कर सकते हो, डिलीट करना है, ओपन, मतलब ये इंटरेक्टिव है, ठीक है, सारे एलिमेंट इंटरेक्टिव। यू कैन, इफ यू वांट टू डिलीट, डेफिनेटली आप इसको डिलीट भी कर सकते हो, बट यहाँ पे आप राइट क्लिक करके डिलीट नहीं कर सकते। हाँ, कोड एडिट जरूर कर सकते हो, बट राइट क्लिक करके इंटरेक्टिव एलिमेंट से इंटरेक्शन नहीं है। आप एलिमेंट इंजेक्ट कोड के थ्रू कर सकते हो, बट दिस इज नॉट इंटरेक्टिव। बट यहाँ पे आप इंटरेक्ट कर सकते हो। आपको पैराग्राफ डिलीट करना है, डेफिनेटली राइट क्लिक करो और डिलीट मारो, डिलीट हो जाएगा। देखो डिलीट किया और वो डिलीट हो गया, ठीक है। रिलोड करेंगे तो अगेन सेम प्रोसेस, इंडेक्स पेज ब्राउजर को असाइन किया, ब्राउजर ने रिसीव करके ऐसा कुछ प्रिपेयर किया, इसको हम डॉमेट्री बोलते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल डॉमेट्री, और डॉमेट्री इधर रेंडर होता है। HTML कभी भी डायरेक्ट इधर रेंडर नहीं होता है, ठीक है। ब्राउजर रिसीव्ड HTML ऑन एंड देन इट पार्स इट, पार्स करके क्या क्रिएट करता है, दिस डॉमेट्री, और ये डॉमेट्री इधर इंजेक्ट होता है, मतलब ब्राउजर डॉमेट्री को रखता है। फॉर एग्जांपल आप इधर लर्निंग जावास्क्रिप्ट की जगह आपने कर दिया कि नॉट लर्निंग जावास्क्रिप्ट, टोटली फाइन। आप बाहर क्लिक करो, देखो इधर नॉट लर्निंग जावास्क्रिप्ट हो गया, HTML में कोई चेंज नहीं आया इधर। मेक सेंस? इसका मतलब क्या है कि डॉमेट्री इधर रिफ्लेक्ट होता है, एक्चुअल HTML नहीं। एक्चुअल HTML जब आप प्रोवाइड करते हो तो उसको क्या करता है ब्राउजर, पहले पार्स करके उसका ट्री क्रिएट करेगा। इसका मतलब कि आप इसको अगर मैनिपुलेट कर लो तो इधर का कंटेंट मैनिपुलेट कर सकते हो, राइट। अगर इधर आप जो चेंजेस करोगे वही इधर रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि ब्राउजर भी क्या करता है, वो HTML रिसीव करता है, पार्स करेगा उसको, पार्स करने के बाद इसको इधर रेंडर करता है या इसको इधर रिफ्लेक्ट करता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, टेक्निकली हम लोग इसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैंने ये कुछ कर दिया, आप क्लिक करोगे देखो ये चेंज हो गया, मेन HTML में चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। सो ब्राउजर HTML रिसीव करता है, उसको पार्स करके डॉम ट्री क्रिएट करता है, जितने भी एलिमेंट होंगे, नहीं होंगे तो फिर ब्लैंक रहेगा, बट स्टिल वो डॉम ट्री क्रिएट करने का ट्राई करेगा, ठीक है। बॉडी तो एटलीस्ट होगा ही होगा हमारे पास, ठीक है। तो बॉडी तो डेफिनेटली होगा, वो भी पार्सिंग ही है। तो डॉम ट्री क्रिएट करेगा, और सारा कुछ क्रिएट करने के बाद जो भी एलिमेंट मिलेगा उसको इधर रिफ्लेक्ट करता है या प्लेस करता है, इसको रेंडरिंग बोलते हैं। तो पार्सिंग देन रेंडरिंग, फर्स्ट रिसीव करेगा HTML, पार्स इट, पार्स करने के बाद डॉम ट्री क्रिएट करेगा, देन डॉम ट्री गेट रेंडर्स ऑन द फ्रंट एंड। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yeah. ठीक है। HTML रिसीव, पार्स किया, डॉम ट्री बनाया, और डॉम ट्री इधर रेंडर होता है। तो दैट इंफॉर्मेशन वाज मिसिंग। अब तक हम लोग HTML सीधे इधर अंडरस्टैंड कर रहे थे कि हाँ HTML राइट करते हुए इधर आता है, नहीं, HTML नेवर कम्स डायरेक्टली टू द ब्राउजर, उसका डॉम ट्री बनता है और वो डॉम ट्री इधर प्लेस होता है। अगर स्टैटिक है तो कोई इश्यू नहीं है, उसमें जितने आपने एलिमेंट्स क्रिएट कर रखे होंगे वो सारा पार्स होकर इधर प्रेजेंट हो जाएगा। बट जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप मैजिकली डॉम को मैनिपुलेट कर सकते हो, ये HTML तो नहीं मैनिपुलेट कर सकते, नो नो, नॉट अ वे, बट डॉम को डेफिनेटली आप मैनिपुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो यही डॉम ट्री है। और डॉम ट्री में क्या क्या होता है टेक्निकली, इनको हम नोड बोलते हैं, ठीक है। जो भी आप टच कर रहे हो, दिस इज व्हाट वी कॉल नोड। तो टू टाइप्स ऑफ नोड आर देयर, ठीक है। एक को हम एलिमेंट नोड बोलते हैं और एक को हम टेक्स्ट नोड बोलते हैं। दो ही टाइप के आपको नोड मिलेंगे इन द डॉम ट्री, नॉट मोर देन दैट, ओके। सो अभी जो एलिमेंट, जो टैग होते हैं उनको हम एलिमेंट नोड बोलते हैं, ठीक है। तो बॉडी इज एलिमेंट नोड, S3 इज एलिमेंट नोड, P इज एलिमेंट नोड, बट ये जो डेटा है दिस इज व्हाट वी कॉल टेक्स्ट नोड। ये क्या है, टेक्स्ट नोड, ठीक है। सो दिस इज एलिमेंट नोड, दिस इज एलिमेंट नोड, एलिमेंट नोड, जो भी एलिमेंट है वो एलिमेंट नोड, और एलिमेंट नोड और एलिमेंट नोड नहीं है जो, वो टेक्स्ट नोड है, सिंपल, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल टेक्स्ट नोड, टेक्स्ट नोड, ओके। सो टेक्निकली आप इसको रीडिफाइन कर सकते हो, डॉम ट्री इज जस्ट कलेक्शन ऑफ HTML एलिमेंट ब्रॉडली, बट और स्पेसिफिक डेफिनेशन दोगे तो डॉम ट्री इज जस्ट कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट नोड एज वेल एज एलिमेंट नोड, ओके। और टेक्निकली बस ये वर्ड से जस्ट कीप इन माइंड, ठीक है। बट आप इससे वर्क करना बहुत ही इजी है, यू कैन वर्क विद द डॉम विदाउट नोइंग दिस
थिंग्स, अभी उसको हम करेंगे, आप देखना आपका कितना इजी है, ठीक है। सो डॉम ट्री को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट का पावर डॉम मैनिपुलेशन में हम लोग यूज करने के लिए ट्राई करने जा रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स नाउ ट्राई टू मैनिपुलेट समथिंग विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो मैनिपुलेट करने के लिए जैसे CSS में व्हाट वी डू, पहले वी यूज टू ग्रैब द एलिमेंट, देन आफ्टर वी स्टाइल द एलिमेंट, सिंपल। यहाँ पे भी वही करेंगे, पहले हम वी विल ग्रैब द एलिमेंट और उसके बाद उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस बिहेवियर ऑन द पेज। और बिहेवियर का क्या मतलब है, भाई इस एलिमेंट को अभी डिलीट कर दो, इसको इधर से इसमें कुछ और ऐड कर दो, इसको रिमूव कर दो, या इसको क्लिक करने के बाद इसका कलर रेड कर दो, ठीक है। तो दीज आर द बिहेवियर, ठीक है। और बिहेवियर हम डेफिनेटली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉम मैनिपुलेशन, ठीक है। और डॉम मैनिपुलेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो डेफिनेटली सारा कुछ टूल टेक्निक्स रेडीमेड फॉर्म में आपको अवेलेबल होगा, बस हमें यूज करने उसको सीखना है, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू क्रिएट समथिंग, ठीक है, आई एम जस्ट गोइंग टू यूज रेडीमेड टूल्स एंड टेक्निक्स, ठीक है, वही यूज करना है हमें, ठीक है। और इसी को हम डॉम मैनिपुलेशन बोलते हैं। तो दिस इज डॉम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, इसी डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्टिफाइड वर्जन है। इसको आप ऑब्जेक्ट की तरह इमेजिन कर सकते हैं। इसके अभी डॉट लगाओगे ना तो इसके पास भी प्रॉपर्टीज और फीचर हैं, मेथड्स हैं, और उनको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। सारे एलिमेंट के पास प्रॉपर्टीज और फीचर, एवरी एलिमेंट हैज इट्स प्रॉपर्टीज एंड फीचर, ठीक है, क्योंकि उनको हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बोलते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट का ही ऑब्जेक्टिफाइड वर्जन है, ठीक है। मींस दीज आर द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इनको एज ऑब्जेक्ट भी ट्रीट किया जा सकता है, मतलब पी इसको ग्रैब करके और डॉट लगाओगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें इसके साथ कर सकते हैं। चलो पहले ग्रैब करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या क्या मिलता है, ठीक है। तो डॉम ट्री में से एलिमेंट को सेलेक्ट करने के कई सारे वेज हैं, ठीक है, और वो सारे प्री डिफाइंड रेडीमेड फॉर्म में आपको अवेलेबल है। सबसे सिंपलेस्ट वे है आईडी के थ्रू सेलेक्ट करना। तो चलो कई सारे वेज है, बट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द आईडी फॉर नाउ, ठीक है, कि कैसे हम आईडी को यूज करके, जैसे CSS में भी आईडी को कैसे यूज करते थे, हाउ यू यूज टू सेलेक्ट आईडी सेलेक्टर, और क्या यूज करते थे उधर, हैश साइन। हैशटैग, ठीक है। हाँ तो ठीक है, तो वहां पे आईडी का यूटिलिटी हैशटैग से था, बट यहाँ पे वी विल यूज अ मेथड जो रेडीमेड फॉर्म में आपको जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो लेट अस सी, दिस इज डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, नाउ दिस इज डॉम, ठीक है। और ट्रस्ट भी एक डॉक्यूमेंट नेम का एक बिग ऑब्जेक्ट आपके पास भी है, मैं इधर डॉक्यूमेंट को बोलता हूँ, ठीक है, डॉक्यूमेंट, ठीक है। और मैं एंटर करूंगा तो आप देखो मैं इस पे माउस ले जाता हूँ और देखो ये वही डॉक्यूमेंट है ना अपना HTML वाला, ठीक है, सेम वही एलिमेंट वाला ही है, ठीक है। दिस इज द सेम, इसको ओपन करोगे तो यू विल गेट द सेम इंफॉर्मेशन ये, ठीक है। तो अभी क्या करता है, इसीलिए इसको डॉम बोलते हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। HTML को रिसीव किया, उसको पार्स करके डॉम बना दिया, यानी डॉक्यूमेंट बिग वाला डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट बना दिया। और डॉक्यूमेंट से डील करने के लिए इसके अंदर टूल्स एंड टेक्निक भी जावास्क्रिप्ट आपको रेडीमेड फॉर्म में देता है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट इटसेल्फ वी आर गेटिंग एक्सेस टू इट इन द ऑब्जेक्ट फॉर्म, ऑब्जेक्टिफाइड वर्जन हमें अवेलेबल, इसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज व्हाट डॉक्यूमेंट इज द बिग ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डॉट करोगे तो आप इसमें से कुछ प्रॉपर्टीज और मेथड को एक्सेस कर सकते हो, और ये रेडीमेड है, ठीक है। तो ये ब्राउजर हमें क्रिएट करके दे रहा है, मैं इसको नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, इसको HTML असाइन करोगे ना तो उसका ऑब्जेक्टिफाइड वर्जन आपको डॉक्यूमेंट के फॉर्म में दे देगा, ठीक है। और ये रेडीमेड है, मतलब डी विथ लोअर केस ही यूज करना, अपर केस करोगे तो इट विल नॉट वर्क, क्योंकि वो रेडीमेड है, मस्ट फॉलो देयर रूल्स एंड रेगुलेशन टू वर्क विद द डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो वी गेट एक्सेस टू द बिग डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। तो चलो इधर इसको डॉक्यूमेंट को ट्राई करते हैं, इधर app.js में आता हूँ मैं, और अभी जस्ट इग्नोर इट, बट इधर हम लोग सीधे डॉक्यूमेंट को लॉग करते हैं, ठीक है, कंसोल, क्योंकि मुझे पता है कि आई हैव एक्सेस टू डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। तो मैं क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट को लॉक करता हूँ विथ लोअर केस डी, सेव करेंगे तो आपको देखो वही डॉक्यूमेंट मिल रहा है, मतलब ये हमारे वाला HTML है जो हमने क्रिएट किया ऊपर, और उसके नीचे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट आपको मिल रहा है, और बिल्कुल ये वही है, ठीक है, अपना वाला ये वाला, ठीक है। ये होल HTML डॉक्यूमेंट, ठीक है। अगेन इसमें थोड़ी और इन्फॉर्मेशन आपको आ रही है, टोटली फाइन, बट पे अटेंशन, आप
इस पे अगर फोकस करोगे तो देखो डॉक टाइप HTML है, ठीक है, और बाकी इसका लोकेशन है, ये डॉक्यूमेंट URI, ये इट्स बिग ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट की बात करोगे तो दिस इज अ ह्यूज ह्यूज ऑब्जेक्ट, इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज और फीचर्स हैं। बिग ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट आपको रेडीमेड फॉर्म में देता है। यू कैन सी, किसी ने पूछा था सर ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, डेफिनेटली ये ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट ही है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर लोकेशन है, और लोकेशन ऑब्जेक्ट को ओपन कर रहे हो तो उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। तो वी विल सी, अभी इसको यूज करने का ट्राई करते, सारा तो नहीं कवर करेंगे, इट इज ह्यूज। सो जो इंपॉर्टेंट वंस है डेफिनेटली वी विल कवर। और यू कैन सी इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, ऑन कॉपी, ये इवेंट इनको हम बोलते हैं, ठीक है। फुल स्क्रीन, दीज आर द प्रॉपर्टीज, वो मेथड्स है नीचे। लास्ट चाइल्ड, ठीक है। तो वी हैव सेवरल प्रॉपर्टी वी विल यूज। फॉर एग्जांपल इस डॉक्यूमेंट का यूआरएल आपको फाइंड करना है, तो डॉक्यूमेंट डॉट बेस यूआरएल करोगे तो आपको डॉक टाइप ये यूआरएल मिल जाएगा इसका, very magical thing. Okay, so let us try to access some properties out of document. Document dot करते हैं, और for example document node ट्राई करते हैं कि क्या देता है हमें, ठीक है। सेव करते हैं और इधर आते हैं, तो ये नोड काउंट करके दे रहा है, ठीक है। 9 नोड्स हमारे पास हैं, और डॉम ट्री ओपन करके और 9 नोड अगर काउंट करोगे तो सच में आपको 9 नोड ही मिलेगा, ठीक है। जस्ट गिव इट ट्राई, अब काउंट करना अपने एंड पे, ठीक है। तो वी आर गेटिंग 9 नोड्स। तो डॉक्यूमेंट इज वेरी ह्यूज ऑब्जेक्ट, और उससे रिलेटेड कुछ भी आपको दे देगा। इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का ये HTML, क्योंकि इसी का जावास्क्रिप्ट हमने लिंक कर रखा है, ठीक है। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ओनली पेज। इधर आते हैं और डॉक्यूमेंट डॉट और कुछ ट्राई करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट, और ये रेडीमेड मैं नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, बस यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और आप भी यूज करो बस। कमेंट नोड, आप कमेंट नोड भी फाइंड आउट कर सकते हो, कितना कमेंट आपने दिया है वो उतना नोट्स प्रोवाइड करेगा। फ्रेगमेंट नोड आपको मिलेगा। डॉक्यूमेंट टाइप नोड आप कर सकते हो, ठीक है। तो सेव करोगे तो आप देखोगे कि टाइप नोड हमारे पास 10 है, ठीक है। आई डोंट नो इवन टाइप नोड क्या होता है, ठीक है। एंड यू इवन स्टिल डोंट नीड टू नो फॉर नाउ। एलिमेंट नोड, एज आई टोल्ड यू, 2 टाइप्स ऑफ नोड्स। एलिमेंट नोड हमारे पास 1 है केवल, okay, and it is taking only 1 element node due to I think body or what. So is it counting document dot element node? So these are also element node, I don't know why this is not counting. Anyways, but you can see this is also element node, this is also element node, so it is counting only body for now, I think. I don't know why, but it's totally fine. But we can accessing something from the document object, that is big. So document dot, like go some let us do something more, URL, okay. If you need URL you can do that. You can see the document का URL है ये, वो index.html ये वाला URL है। You can grab access to it and you can store in a variable। आप इधर कॉल करके और इसको वेरिएबल में स्टोर करके आप URL फेच कर सकते हो मैजिकली, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट we can go something more like entity node, notation node, text node, ठीक है। इसमें से text node प्रोवाइड करेगा हमें। सेव करते हैं तो ये देखो ये 3 करेक्ट बता रहा है टेक्स्ट नोड इसके, ठीक है। जितने भी टेक्स्ट आपको मिलेंगे दो ज्यादा टेक्स्ट नोड, हाँ ये सही बता रहा है टेक्स्ट नोड, टोटली फाइन। ओके, सो व्हाट वी कैन एक्सेस मोर, these are some methods, ठीक है। आप इवेंट लिस्ट में बाइंड कर सकते हो। वी डोंट नो इवेंट्स फॉर नाउ, बट अभी के लिए जस्ट इग्नोरिंग इट। अपेंड चाइल्ड अभी यूज करेंगे, अभी नहीं यूज करेंगे, नेक्स्ट क्लास में यूज करेंगे। बट यू कैन एक्सेस बॉडी टू, मतलब अगर आपको बॉडी चाहिए तो डेफिनेटली आप बॉडी करोगे तो यू कैन ग्रैब एक्सेस टू द बॉडी, ठीक है। ये बॉडी ऑब्जेक्ट है एक तरह से, वही बॉडी जो आपके पेज पे है, बट उसके साथ इतना सारा पावर एसोसिएटेड है, ये हम पहली बार देख रहे हैं, ओके। But trust me, the body is again very, every element has that powers, कुछ बहुत सारे powers उसके साथ associated है जो जावास्क्रिप्ट के साथ हमें अवेलेबल मिलते हैं रेडीमेड फॉर्म में। आप अपना भी क्रिएट कर सकते हो। बेस URI यू कैन टारगेट, तो अभी आप देखो वही सेम आपको बेस URL मतलब URI बोथ सेम। you can like
डू सेवरल थिंग, ठीक है। बट अभी मैं इंटरेस्टेड हूँ किसी एलिमेंट को ग्रैब करने में, ठीक है। तो चलो किसी एलिमेंट को ग्रैब करते हैं, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये बना है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एक मेथड है और इसको हम लोग कॉल कर लेते हैं। तो लेट अस कॉल इट, और कॉल करने के बाद मुझे आईडी सप्लाई करनी होगी। तो इधर एचटीएमएल में आके इसको एक आईडी देना पड़ेगा कि भाई तुम्हारी आईडी हम लोग दे रहे हैं h3 फॉर नाउ, ठीक है। तो इधर हमें आईडी सप्लाई करना होगा कोटेशन में h3, नो हैशटैग नथिंग, ठीक है, क्योंकि आईडी को वेट कर रहा है तो यू जस्ट नीड टू प्रोवाइड आईडी, दैट्स इट। सेव करेंगे तो डेफिनेटली आपको h3 मिल गया, ठीक है। यू कैन सी यू आर गेटिंग h3 एलिमेंट। इसको ओपन करो तो इसके साथ भी बहुत सारी, क्योंकि इट्स ऑब्जेक्ट, एवरी एलिमेंट इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। डॉम ट्री से कुछ भी पकड़ते हो, आपने ग्रैब किया कि भाई डॉक्यूमेंट तुम्हारे अंदर एक मेथड है गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसको हम आईडी जब सप्लाई करते हैं तो आपको पूरा का पूरा एलिमेंट रिटर्न में देता है जिसकी आईडी h3 है इस केस में, ठीक है। और ये सारा कुछ रेडीमेड है, h3 बस मैंने असाइन किया टू ग्रैब दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, ठीक है। तो अभी मैंने उसको ग्रैब किया, उसको चाहो तो वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इधर एक वेरिएबल क्रिएट करो और ele फॉर एलिमेंट, और एलिमेंट को लॉक कर लो, टोटली फाइन, इट विल वर्क विदाउट एनी इशू। इफ आई सेव, डेफिनेटली यू कैन सी यू आर गेटिंग द सेम रिजल्ट, लाइन नंबर 24। ओके, ओपन करोगे तो अगेन इट इज ऑब्जेक्ट लाइक थिंग, सो यू कैन डू सेवरल थिंग। इसमें सारी ये प्रॉपर्टीज है, कुछ नल है बट इसका भी बेस URI है, child node, you can see the length, everything. You have several things, for example id you can use, inner HTML, learning JavaScript, ठीक है। so this is what it is saying कि भाई इसके अंदर जो HTML है ना वो learning JavaScript है, ठीक है, ये वाला पोर्शन। तो अगर आपको इनर HTML प्रॉपर्टी एक्सेस करोगे तो ये मिल जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट डॉट इनर HTML ले लो, ठीक है, देखो सेम, और यू कैन सी कि आपको लर्निंग जावास्क्रिप्ट इधर मिल रहा है इन द वेरिएबल। इधर जावास्क्रिप्ट में उसको एक्सेस कर सकते हो फ्रॉम द पेज, ठीक है। इसको आपने ग्रैब कर लिया, इन अ वेरिएबल आप स्टोर कर सकते हो, बहुत सारी चीजें डॉट। और अगेन इसमें भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज और फीचर्स अवेलेबल हैं। अगेन सारा तो नहीं कवर कर पाएंगे बट मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस जिसको आप डेली बेसिस पे यूज करोगे वी विल कवर इट। ओके, तो वी हैव द एलिमेंट, और एलिमेंट को ग्रैब किया हमने एंड वी कैन परफॉर्म सम ऑपरेशन ओवर हियर, ठीक है। तो डेफिनेटली इसका इनर HTML प्रॉपर्टी मैंने जैसे आपको बताया आपको इनर HTML देता है। ऐसे हमारे पास इनर, अब देखो मैजिकल क्या है, हमने HTML क्रिएट कर रखा है, क्या मैं इस एलिमेंट के इनर HTML प्रॉपर्टी से, देखो जैसे हम ऑब्जेक्ट है ना, एलिमेंट ऑब्जेक्ट है कि नहीं, एवरीवन ओके विद दैट, जिसके पास इतनी सारी प्रॉपर्टीज एंड मेथड है, ठीक है। तो डेफिनेटली ऑब्जेक्ट के अंदर कोई प्रॉपर्टी अपडेट भी किया जा सकता है, राइट। फॉर एग्जांपल हमने इनर HTML अगर एक्सेस कर रहे हैं तो उसके अंदर जो HTML होगा वो हमें मिल जाएगा। कोई HTML नहीं है, टेक्स्ट नोड है, तो टेक्स्ट नोड वी आर एक्सेसिंग इट, ठीक है। सेव करेंगे तो इसको लॉग नहीं किया मैंने बट डेफिनेटली यू विल एक्सेस द HTML। आप इसको ब्लैंक सेट कर सकते हैं, इक्वल टू, मैंने कहा नहीं नहीं मुझे इनर HTML में ना जो ये HTMल प्रोवाइड कर रहा है ये लर्निंग जावास्क्रिप्ट ये नहीं चाहिए, मुझे ब्लैंक कर दो, ठीक है। तो इधर देखना अभी ये डिसअपीयर हो जाएगा क्योंकि वो ब्लैंक हो जाएगा जावास्क्रिप्ट रन होते ही। पहले वो HTML लर्निंग जावास्क्रिप्ट रहेगा, फर्स्ट इट विल रेंडर, उसका जावास्क्रिप्ट कोड क्या करेगा, इसको ब्लैंक सेट कर देगा, जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तब वी विल ग्रैब दैट h3 और उसके बाद इसको रिमूव कर देगा, ब्लैंक कर देगा। सेमीकोलन लगा के सेव करूंगा, तो देखो वो h3 गायब हो गया, क्या हुआ, वो इनर HTML क्या हो गया, कहा ब्लैंक कर दो। तो h3 टैग तो है वहां पे बट वो ब्लैंक पड़ा होगा। मैं इसको ओपन करता हूँ, आप इधर डॉम एलिमेंट में आओ और देखो h3 है, आईडी है बट इसके अंदर कोई टेक्स्ट नहीं है, राइट ना। क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने क्या किया, एलिमेंट के इनर HTML जो कि रेडीमेड प्रॉपर्टी है, जावास्क्रिप्ट आपको प्रोवाइड करता है, मैंने पहले उसको ग्रैब किया। फर्स्ट ग्रैब करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे ग्रैब करते हैं CSS लगाने के लिए, एग्जैक्टली सेम वे यू हैव टू ग्रैब दैट एलिमेंट, देन आफ्टर यू हैव टू यूज सम प्रॉपर्टीज। ये रेडीमेड ही अब यूज कर रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट रेडीमेड फॉर्म में आपको अवेलेबल होता है, सारे एलिमेंट ऑब्जेक्ट होते हैं। तो एलिमेंट डॉट इनर HTML अगेन रेडीमेड थिंग, और उसमें मैंने बोला कि भाई उसको ब्लैंक सेट कर दो, इनिशियली ये रहा होगा, ठीक है।
जो भी इनर में आता है, इनर मतलब इसके अंदर का, h3 को ग्रैब किया, इनर एचटीएमएल मतलब इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है, अगर एचटीएमएल वाली है तो एचटीएमएल दे दो, और अब सिंपल टेक्स्ट है तो टेक्स्ट भी वो एचटीएमएल की तरह कंसीडर होगा। इवन प्लेन टेक्स्ट चाहिए तो आप इनर टेक्स्ट प्रॉपर्टी भी कॉल कर सकते हो, बट अगेन एलिमेंट के इनसाइड एलिमेंट होते हैं, तो डेफिनेटली दैट्स व्हाई इनर एचटीएमएल्स आर वेरी वेरी यूजफुल। तो ब्लैंक सेट कर दिया, आप ग्रैब एंड एक्सेस भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं उसको लॉग भी कर देता हूँ सो दैट आपको पहले दिखे तो कि हाँ वो क्या है। तो मैं एलिमेंट को इधर यूज करता हूँ, डॉट इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी इधर भी कॉल करता हूँ, ठीक है। कॉलन लगा के सेव करेंगे। लेट अस पे अटेंशन इन द कंसोल, वी कैन सी लर्निंग जावास्क्रिप्ट है, देन आफ्टर इट इज गेटिंग डिसअपीयर्ड, राइट। क्योंकि पहले क्या हुआ होगा, पहले ग्रैब किया, मैंने बोला भाई उसके इनर एचटीएमएल दे दो और उसको लॉक कर दो, ठीक है। तो वही इनर एचटीएमएल हमें ये मिल गया, ठीक है। और उसके बाद हमने इसको लॉक किया है और उसके बाद इसको ब्लैंक सेट किया है। तो अगर मैं इसका ब्लैंक हटा दूं, मान लो कमेंट कर दिया, सेव करेंगे तो देखो इधर अभी प्रेजेंट है और इधर भी प्रेजेंट है, टोटली फाइन। बट इसको अगर अन कमेंट कर दूं तो देखो ब्लैंक हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही है ना। अभी क्या हो रहा होगा, जैसे बोल रहे हैं एलिमेंट डॉट इनर एचटीएमएल, मतलब एलिमेंट ऑब्जेक्ट तुम्हारे अंदर जो इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी है ना उसको ब्लैंक कर दो। ऑब्जेक्ट ही तो कर रहे हैं ना ये, करेक्ट। पहले यस सर। एलिमेंट डॉट इनर एचटीएमएल पे ये डेटा था, मतलब जो अभी डिसअपीयर हो गया, ठीक है, ये वाला। और फिर हमने उसको ब्लैंक सेट किया। तो क्या हम लोग ये एचटीएमएल प्रॉपर्टी नहीं असाइन कर सकते, इधर कर सकते हैं टेक्निकली, यस। वी कैन अपडेट दिस होल टेम्पलेट इन हियर ना, अगर ब्लैंक सेट कर रहे हो आप, या फिर कुछ और आप चेंज करना चाहो कि आई चेंज इट, ठीक है। तो देखो प्रोग्रामेटिकली यहाँ पे आई चेंज इट आ गया, ठीक है। पहले लर्निंग जावास्क्रिप्ट था और उसके बाद आपने असाइन कर दिया आई चेंज इट, ठीक है। इवन आप इधर एक डिव क्रिएट कर लो, उसको भी आप ग्रैब कर सकते, नॉट द डायरेक्टरी डिव, और डिव को भी हम लोग एक आईडी देते हैं और इसको ट्राई करते हैं ग्रैब करने का, इसकी आईडी डिव ही दे देते हैं, ठीक है। लेट अस ट्राई टू ग्रैब दैट डिव, ब्लैंक है, इसमें कोई डेटा नहीं है, बट अगेन इसके इनर एचटीएमएल में हम डेटा सेट कर सकते हैं with the help of JavaScript. So let us try to grab that. यहाँ पे कॉपी क्रिएट करते हैं, यहाँ पे div देते हैं। तो अभी हमारे पास ये div हमारे पास है और ये हमारे पास फॉर एग्जांपल h3 है, वेरिएबल का नाम h3 दे दिया। तो h3 ग्रैब किया h3 की तरह से और div को ग्रैब कर लिया, ठीक है। तो डेफिनेटली ये भी एलिमेंट, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, these have some properties। अभी इसके अंदर कोई इनर एचटीएमएल नहीं है, ब्लैंक है, बट अगेन डेफिनेटली इसके अंदर आप इनर एचटीएमएल रख भी सकते हो क्योंकि डिव है। तो फॉर एग्जांपल मैंने h1 में कुछ रखा कि टेस्टिंग, और इधर मान लो हमने एक पैराग्राफ रखा कि चलो भाई कुछ डमी डेटा, ठीक है। सेव करेंगे, गुड। ये टेस्टिंग और डमी डेटा ये डिव के अंदर है। अब इसको इनर एचटीएमएल इसका ग्रैब करोगे ना तो डेफिनेटली आपको मिलेगा। मैं एलिमेंट को हटा के और इसको भी रिमूव करता हूँ और console डॉट लॉग करता हूँ div डॉट इनर एचटीएमएल, ठीक है। और देखना आपको एक h2 एक h1 मिलेगा और एक पैराग्राफ मिलेगा। सेव करते हैं, इधर देखो ये h1 मिला और ये पैराग्राफ फ्रॉम द div। गेटिंग माय पॉइंट, सही है ये, यस सर। ठीक है। तो एक्सेसिंग, गेटिंग इट बाय द आईडी और उसके बाद उसका इनर एचटीएमएल हम एक्सेस कर रहे हैं। डेफिनेटली आप सेट भी कर सकते हो div डॉट इनर एचटीएमएल और इसमें बोल दिया कि नथिंग। सेव करेंगे और इधर देखो अभी वहां पे नथिंग आ रहा है, ठीक है। मतलब div के अंदर ओनली ये वर्ड होगा, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक बट एनीवेज, ओके। सो वी कैन इजीली रिप्लेस द थिंग्स। तो अब मैं क्या करता हूँ, जो मैंने अपना टेम्पलेट जनरेट किया है उसको भी तो असाइन कर सकता हूँ क्योंकि वेरिएबल ही है। तो आप क्या करोगे, इनर एचटीएमएल में html वेरिएबल असाइन कर दोगे एंड यू कैन सी द मैजिक। अब ये वाला वे, इसीलिए मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं पहले बताता हूँ, क्योंकि ये वे है प्रॉपर वे। डॉम ट्री को आप मैनेज कर लोगे तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट आपको यूज करना ही नहीं, उसकी जरूरत ही क्यों है, क्योंकि इट्स नॉट अ प्रोफेशनल प्रैक्टिस, क्योंकि डॉम मैनिपुलेट करना है आपको, डायरेक्ट कंटेंट ब्राउजर में इंजेक्ट नहीं करना है, ठीक है।
तो now it will do the task. ठीक है, let us save it and hope for the best. And yeah, happy. Okay, so good. You are injecting data from an object and making template out of it, now using DOM manipulation to put that data in the browser. 3 steps are always going to be involved. ठीक है, DOM manipulation जब भी आपको इधर कुछ डेटा प्रेजेंट करना है या रेंडर करना है, उस केस में यू विल यूज दैट DOM manipulation. बट अगेन डेटा को कैसे, क्या टेम्पलेट या क्या देना है, डेफिनेटली आप यूज करोगे कुछ ऐसा टेम्पलेटिंग में. मेक सेंस? एवरीवन ओके विद दैट? यस ठीक है, तो आप देखो कितना बेटर वे है ये. और ये HTML नहीं है, ठीक है, पे अटेंशन. HTML में हमारे पास इवन ओनली ये वाला सेगमेंट है, लर्निंग जावास्क्रिप्ट, राइट ना? सो यू कैन रिमूव इट, इवन यू डोंट नीड एनीथिंग. ठीक है, ये एक ब्लैंक डिव रखो, only one page, and you don't need to put any HTML here. Only one div will do the magic. इसके अंदर आप सारा HTML write कर सकते हो. Save blank, and you can see all the content and coming dynamically, right? So now it is what? It is dynamic ना? इधर HTML में नहीं है अभी. It is coming from JavaScript. JavaScript में हमारे पास object है. We are creating template based on that object, और उसको DOM टेक्निक यूज करके हम लोग इंजेक्ट कर दे रहे हैं डॉम ट्री में. अब डॉम ट्री में जो होगा वो ब्राउजर पे डेफिनेटली रिफ्लेक्ट होगा. तो डॉम ट्री में ये मिलेगा, HTML पेज में नहीं मिलेगा. ठीक है, चलो डॉम ट्री में देखते हैं क्या होगा. इंस्पेक्ट क्यों नहीं हो रहा? ओके, आई थिंक वो ऑलरेडी है इधर. है हाँ. सो इफ यू कैन सी, तो इधर डिव आते हैं, देखो इधर सारा HTML है, करेक्ट ना? ओके, सो दिस इज द वे. ठीक है, अभी इसको करेंगे, यही डॉम मैनिपुलेशन है. और नटसेल मैंने काफी शॉर्टकट में बताया अभी, बट डॉम मैनिपुलेशन में भी बहुत सारा कुछ है. फॉर एग्जांपल अभी मैंने गेट एलिमेंट बाय आईडी बताया है, बट और भी 4 5 6 10 मेथड्स हैं जो रेडीमेड है आपको डॉम ट्री में से एलिमेंट को ग्रैब करने के लिए. तो वी विल डिस्कस ऑन दोस टू कि और कौन कौन से मेथड है. और साथ में इनर HTML मैंने डायरेक्ट असाइन कर दिया. इट इज आल्सो नॉट अ गुड प्रैक्टिस. यूजुअली हम लोग ये सारे एलिमेंट डायनेमिकली क्रिएट कर सकते हैं. जावास्क्रिप्ट इज वेरी वेरी पावरफुल. ठीक है, तो ये एलिमेंट मैंने टेम्पलेट क्रिएट किया. टेक्निकली यही करेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम, बट यू कैन आल्सो क्रिएट द एलिमेंट विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट. ठीक है, तो वो वाला भी सेगमेंट हम लोग कवर करेंगे. बट आप लोगों के लिए सिंपल सा होमवर्क कि यूजर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है. यूजर का नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, ईमेल एड्रेस, और क्या कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ. हाँ, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर. तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और उसके बेसिस पे आपको एक टेम्पलेट जनरेट करना है. बिल्कुल यही टेम्पलेट लिटरल को यूज करके. देन आफ्टर आपको डॉम ट्री में ये वाला, ठीक है, जस्ट डॉम कैसे वर्क करता है बस अभी हमने सरफेस को स्क्रैच किया है, बट डेफिनेटली और डिटेल में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो आपको ओनली डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट मींस दिस होल HTML. ठीक है, इसी का ऑब्जेक्टिफाइड वर्जन आपको मिलेगा जिसको हम डॉम बोलते हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल. ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है. डॉट किया आपने, इसके अंदर रेडीमेड मेथड गेट एलिमेंट बाय आईडी एग्जैक्ट ऐसे यूज करना है, ई अपर केस, बी अपर केस, आई अपर केस, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क. ठीक है, क्योंकि ये लाइब्रेरी में अवेलेबल है तो डेफिनेटली आपको वैसे यूज करना है. और उसके बाद आईडी यहाँ सप्लाई करना है. यू विल गेट दैट एलिमेंट फ्रॉम द डॉम ट्री. डॉम ट्री से आपने उस एलिमेंट को ग्रैब किया, डिव को, और उसका इनर HTML आपने चेंज कर दिया. अब इस लाइन की जरूरत नहीं है. ठीक है, यू डोंट नीड टू लॉग दैट. लॉग तो बस टेस्टिंग के लिए होता है. अभी लॉग पे चेक करोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ब्लैंक. बट आवर एप्लीकेशन इज वर्किंग नाउ, राइट ना? सो प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट इमेज, प्राइस, डिटेल एंड अवेलेबिलिटी. ठीक है, यू कैन नाउ, अभी हमें इवेंट और सारी चीजें नहीं पता है, अदरवाइज यू कैन पुट समथिंग लाइक ऐड टू कार्ट एंड यू कैन क्लिक ऑन दैट एंड द प्रोडक्ट विल गेट एडेड इन द कार्ट. वी विल डू दैट इन अपकमिंग क्लास. ओके,
So let us stop by here, and in the next class, क्या बात है, क्लास लेफ्ट करके समझ में आ रहा है ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है। तो जस्ट अभी 32 लोग थे ना, तो 25 बचे केवल, आई डोंट नो। ठीक है, लेट अस सी, बाय एंड विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थोड़ा सा और Okay, sir. ऑब्जेक्ट Good night. Thank you, sir. Thank you, sir. गुड नाइट, बाय, Okay, okay. Yes, sir. गुड नाइट, गुड नाइट। Good night. Yes, sir. इसका बोल दो, भाई कर लगा तू।